So we already have developed this web page. So in this web page, we were able to find the pin code and based on the search, we are getting the result. And we have added the feature where if we will if we will click on the go to map, then it will navigate to the Google Map. Now, as we discussed in the previous session, okay, today we are going to develop a application where it will similar to the same application, but now here you will get the map component. So now in today's session, the look it looks like this. So here we will do the same thing, but this thing we need to show on the map. Means whatever the search we are doing, the search result what we are showing here. So along with this list, we want to show the search on map as well. So before going to work on this, first we will discuss something about the map, how easily we can add the map on the web page and all. So here one thing I just want to tell you, whenever we are going to work with any map application, because as you know, there are n number of GIS JavaScript libraries are available. Correct? There are n number of GIS JavaScript libraries are available. But the thing is, which library we need to use, that is depends upon the project and depends upon the company. So in our earlier session, I already shown you what are the different type of GIS JavaScript libraries are available. Like we have Leaflet, we have Mapbox, we have ArcGIS JavaScript API, we have MapMyIndia, we have Google Map. So there are n number of GIS JavaScript APIs are available. Any API, any API, whatever we want, we can use. Some of the APIs are free, some of the APIs are paid, some of the APIs have some special feature, some of the API have some different special feature. Rest of the things is remain same in all the GIS JavaScript APIs. The important thing is almost all the GIS JavaScript APIs use method of using is same. Okay, method of using is almost same. Maybe not 100% same, but the way of using the GIS JavaScript API conceptually is this is same. Okay. So the most important thing is whenever we are working with any whenever we are working with any GIS JavaScript library or API, so always remember there are two important files which we need to add in our application. One is .js and one is .css.
मतलब आप कोई भी जीआईएस जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज करना चाहते हो तो उसमें दो इम्पोर्टेंट फाइल्स होंगी। एक फाइल क्या होगी, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होगी, और एक किस चीज की फाइल होगी, सीएसएस की फाइल होगी। ठीक है। अगर मैं लीफलेट यूज करने जा रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं से मुझे क्या ऐड करना है अपने सोल्यूशन में, मुझे अपने सोल्यूशन में लीफलेट डॉट जेएस ऐड करना है और लीफलेट डॉट सीएसएस ऐड करना है। अगर मैं गूगल का यूज़ करने जा रहा हूँ तो मुझे गूगल का जेएस यूज़ करना है और गूगल का मुझे क्या करना है, सीएसएस यूज़ करना है। अगर मैं आर्क जीआईएस का यूज़ करने जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आर्क जीआईएस जावास्क्रिप्ट का मैं एक जेएस यूज़ करूँगा और आर्क जीआईएस का ही मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं सीएसएस यूज़ करूँगा। मैं अगर मैप बॉक्स का यूज़ करने जा रहा हूँ तो मैप बॉक्स डॉट जेएस, मैप बॉक्स डॉट सीएसएस। मतलब कुल मिला के ये है कि इफ़ वी आर गोइंग टू यूज़ एनी जीआईएस जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, मतलब आप अपने वेब पेज में एक मैप कंपोनेंट अगर लगाना चाहते हो तो आपको क्या चीज़ यूज़ करना कंपलसरी है, आपको कोई ना कोई जीआईएस जावास्क्रिप्ट एपीआई, जीआईएस जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, कुछ भी कह सकते हो, ये यूज़ करना कंपलसरी है। बिना इसके हम लोग मैप अपने वेब पेज में इंक्लूड नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है आप यहाँ तक तो नहीं है? नहीं। ठीक है। अब मान लो कि मैं यहाँ पे ना एक बिल्कुल नया पेज बनाता हूँ। ठीक है। एक मैं नया पेज बनाता हूँ कि मैप 1_12/2025 ये एक हमने एक नया वेब पेज बनाया। और अब हम चाहते हैं कि इस वेब पेज में मुझे, ये एक वेब पेज है, खाली वेब पेज है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है। कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसमें। मान लो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ कि H1, दिस इज माई फर्स्ट मैप एप्लीकेशन। ठीक है। मैं क्या लिख देता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट मैप एप्लीकेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप कोई भी जीआईएस जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज करना चाहते हो तो पहले आप चेक करो कि उसका जावास्क्रिप्ट का फाइल और सीएसएस का फाइल कहाँ है, कैसे मिलेगा। तो इसके लिए जो है, वैसे तो आप कहीं पे भी ढूंढ सकते हो। मतलब मैं जैसे कि लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा लीफलेट लीफलेट जावास्क्रिप्ट, या सीडीएन से ले लो, कहीं से भी ले लो। अभी मान लो मैं जाओ, ये लीफलेट का वेबसाइट है, मैं लीफलेट की वेबसाइट पे जाके चेक करता हूँ कि भाई यहाँ पे कैसे मिले। तो ये आप देखो, यहाँ पे क्या बोलता है कि आप ये यूज़ कर लीजिए। एक क्या है आपका, एक आपका है सीएसएस और एक क्या है आपका जावास्क्रिप्ट। मैंने इसको यहाँ पे लाके डाल दिया। ठीक है। बराबर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। सिर्फ मैंने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया अपन ने, लीफलेट का सीएसएस ऐड कर दिया और फिर लीफलेट का क्या ऐड कर दिया यहाँ पे, ये हमने जेएस ऐड कर दिया। ठीक है। इजी यहाँ तक। सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग, ये फर्स्ट इम्पोर्टेंट काम हो गया। पहला इम्पोर्टेंट काम क्या हो गया कि हमको, फर्स्ट इम्पोर्टेंट काम आपने ये कर लिया कि आपको ऐड कर दिया हमने क्या, फर्स्ट वन इज ऐड रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस फाइल्स। पहला काम ये हो गया। नेक्स्ट,
सेकंड काम क्या होता है कि क्रिएट div where we want to show map। एक क्या कर लीजिए आप, एक क्या बना लीजिए, div बना लीजिए, जहाँ पे कि आप क्या करना चाहते हो, मैप को दिखाना चाहते हो। तो मैं उधर पे आता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, एक div बना लेता हूँ, और इसका आईडी में क्या कर देता हूँ, आईडी इज इक्वल टू मैप लिख दिया मैंने ऐसे ही। तो ये div बन गया, दूसरा स्टेप भी हो गया। अब क्या है कि ये जो div है ये तो नॉर्मल div है। मतलब ये जैसे कि आपको पता है कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ कि div, सॉरी, यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ, स्टाइल, और इधर पे हमने लिख दिया हैश मैप, और इसके अंदर मैंने कुछ लिख दिया कि इसका विथ कितना होना चाहिए। विथ मान लीजिए मैंने लिख दिया 400 पिक्सल, एंड हाइट मैंने लिख दिया 400 पिक्सल। तो ये क्या बन गया, एक एक ये डिव है। और जस्ट ऐसे ही देखने के लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर कुछ भी डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे, अपने वेब पेज में देखते हैं, ये इधर पे कुछ तो आ गया ब्लू ब्लू कलर। तो मैंने अभी तक क्या किया, मैंने एक स्टेप किया, फर्स्ट स्टेप मैंने कर दिया CSS ऐड कर दिया, जावास्क्रिप्ट ऐड कर दिया। सेकंड स्टेप मैंने क्या कर दिया, एक डिव बनाया। ये कोई स्टेप नहीं कहलाएगा क्योंकि ये तो जस्ट ऐसे ही देखने के लिए अपन ने लिख दिया, स्टाइल स्टाइल। बाकी मेन स्टेप क्या था, हमने एक डिव बनाया जिसका कि आईडी मैंने क्या लिख दिया, मैप। यार पानी नहीं, इसका आईडी क्या लिख दिया अपन ने, मैप। आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। मैप जस्ट मैंने ऐसे अपने कन्वीनियंस के लिए लिया है, आप इसको कुछ भी जो भी देना है आप दे सकते हो नाम। अब हमें क्या करना है, ये जो नॉर्मल डिव है ना, इस नॉर्मल डिव को किस में चेंज करना है, किस में चेंज करना है इसको, नॉर्मल डिव को अपने को मैप में बदलना है, ठीक है। इस नॉर्मल डिव को मैप में बदलना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट टैग के अंदर इसको हम क्या करेंगे, इस मैप को वाले डिव को हम इस नॉर्मल डिव को हम मैप वाले डिव में कन्वर्ट करेंगे। तो जरा देख लेते हैं उसके लिए क्या है। इधर पे कुछ तो मैंने, ये है, ये एक लाइन मैं उठाता हूँ और अपने कोड में स्क्रिप्ट के अंदर डाल देता हूँ। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, वेरिएबल मैप इज इक्वल टू समथिंग, और अब मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने वेब पेज पे। तो यहाँ पे देखता हूँ कि भाई कुछ तो ये यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कुछ आ गया है, लेकिन मैप नहीं आ रहा है अभी। बट ये हाँ कुछ तो मैप के जैसा कुछ तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये लगता है कुछ तो मैप में कन्वर्ट हुआ है। अब हमने क्या किया, इसको मैप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसको कन्वर्ट करने के लिए आपने फंक्शन क्या लिखा, l.map। ये जो है आपका डिव का आईडी है, जो भी डिव आपने बनाया है जिसको आपको मैप में कन्वर्ट करना है, दैट आईडी वी नीड टू मेंशन हियर। डॉट सेट व्यू, सेट व्यू मीन्स व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ मैप, व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ मैप, एंड व्हाट इज द जूम लेवल। तो अभी जैसे मान लो कि हम ऐसा चाहते हैं कि यार जब भी मैं मैप खोलूं
तो मैप जो है कुछ तो हैदराबाद एरिया के आसपास खुले, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे हैदराबाद का कोई भी एक पॉइंट आप ले लीजिए। मान लो कि ये इधर पे कहीं पे, ये मेरा घर के आसपास का पॉइंट, ये यहाँ पे मान लीजिए हम एक कोई पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये एक पॉइंट मैंने ले लिया, क्या है इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट, इसको मैंने कॉपी कर लिया। एंड देन हम चले जाते हैं अपने कोड पे, यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये क्या आ गया, मैप ऑब्जेक्ट आ गया, मैप ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गाइस, कोई दिक्कत नहीं आता, नो। सिंपल है। हम्म। वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, एक्चुअली हमारा ऑब्जेक्ट तो मैप में बदल गया है, क्योंकि ये प्लस माइनस आ गया और कुछ तो ये यहाँ पे ऐसा है। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ये मेरा ग्रैबर ग्रैबर भी आ गया, जूम इन जूम आउट भी कुछ तो हो रहा है, कुछ तो मतलब है। बट यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास अभी क्या नहीं है, बेस मैप नहीं है। करेक्ट। एक बार अगर यहाँ पे बेस मैप आ जाए तो पूरा काम क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो आप इसको, चलो इसको थोड़ा सा इसका ये बढ़ा देते हैं, देखने में जरा अच्छा लगेगा। 800 कर देते हैं, और इसको भी कुछ चाहिए तो 500 कर देते हैं, ऐसा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, इस मैप में हमें क्या करना है, एक जो है बेस मैप ऐड करना है। तो बेस मैप ऐड करने के लिए हमें कोई भी, बहुत सारे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, फ्री बहुत सारे फ्री बेस मैप अवेलेबल हैं मार्केट में। आप कोई भी बेस मैप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। अभी हम जो लगा रहे हैं, दिस इज द ओपन स्ट्रीट मैप, ओएसएम मैप। नाउ इफ यू गो टू द वेब पेज, सो यहाँ आप देख रहे हो आपका क्या आ गया, यहाँ पे पेज आ गया। वो ब्लू कलर हम निकाल देते हैं, अच्छा नहीं लगता है मैप वगैरह में। वो मैंने आपको दिखाने के लिए जस्ट ऐसे ही लगाया था। तो अभी आप देखिए यहाँ पे, ये आपका मैप आ गया। दूसरी चीज, इस मैप का जो सेंटर है, आपने सेंटर क्या डाला था, ये डाला था। और जूम लेवल आपने डाला था यहाँ पे क्या, 12। अभी मान लो मैं इसको क्या कर देता हूँ, 12 को 15 कर देता हूँ। आप जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली जूम हो जाएगा। 18 कर देते हैं, ये आ गया। तो ये आपका जो आपने पॉइंट लिया था वो, और जो जूम लेवल चाहिए आपको वो, सिर्फ सिर्फ इतना ही कोड इम्पोर्टेंट है किसी भी वेब पेज में क्या लाने के लिए, मैप लाने के लिए। आप लाने के लिए। यहाँ तक आप सर यहाँ लोगों, पे जो 18 जी 12 जो जूम लेवल है, जी, वो हम उससे अलावा स्केल वगैरह ऐसा कुछ रह सकता है क्या? जो, और ये जूम लेवल वो स्केल करके हम यूज करेंगे? नहीं, क्या होता है कि ये जो हम लोग बेस मैप यूज करते हैं ना, बेस हम्म। मैप जो है वो हमारा नहीं है, पहली चीज। करेक्ट। बेस मैप yes। जो है वो किसका है, कोई तो भी कंपनी का है, जो कि जिन्होंने फ्री में हमको दिया हुआ है। हर हम्म। कंपनी का, चाहे वो गूगल हो चाहे इसरी हो, कोई भी बेस मैप आप यूज करते हो, उस बेस मैप का क्या होता है, एक डिफरेंट जूम लेवल होता है। करेक्ट। मैक्सिमम जूम लेवल इतना है, मिनिमम जूम लेवल इतना है। ये जो जूम हम्म। लेवल आपका है, ये आपका क्या है, मैप का जूम लेवल है। आप ओके। मैप को जूम लेवल कितना भी दे सकते हो, लेकिन अगर उस जूम लेवल पे ये अवेलेबल है, तब तो आपको क्या होगा, वो दिखेगा। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वो आपको नहीं नहीं दिखा। दिखेगा। ठीक है। तो ये जूम लेवल यस। जो है, दैट इज डिपेंड्स अपॉन व्हाट, ये जूम लेवल आपका मैप का जूम लेवल है। एंड वो बेस लेयर या बेस मैप आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा, दैट इज डिपेंड्स अपॉन द कंपनी
who are providing the base map tiles. ठीक है। यस। वेरी गुड। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? मैप ऐड करने का कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? यस। नो। चले हम अपन सीधा अपन इसमें चले, एग्जाम्पल पे चले यहाँ पे, और जो एक एक चीज करेंगे और उनको एक एक चीज समझेंगे। ठीक है। अब देखो, आप अगर यहाँ पे समझो इसको, यहाँ पे अभी तक हमने एक्चुअली ये सब नॉर्मल हमारा वेब पेज था। इफ वेस इस वेब पेज में हमने क्या लगाया हुआ है, एक ये मैप लगाया हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट क्या लगाए हुए हैं, बेस मैप। क्या लगाए हुए हैं यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट बेस मैप। बाय डिफॉल्ट ओपन स्ट्रीट का मैप है। आप इसरी का ओपन करना चाहते हो तो इसरी का आएगा। ओपन स्ट्रीट है, ये है। और कार्टो डीबी, ये तो मतलब ये एक्चुअली क्या है, ये आप जिस हिसाब से क्या करते रहेंगे, आप चेंज करते रहेंगे, जो अवेलेबल है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। मैं आपको बता दूंगा इसका जो टाइल लेयर्स का लिंक। आपको कोई भी लेयर्स आपको लगाना है अपने मैप में, आप उसको क्या कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट जो टाइल्स अवेलेबल है उनको आप क्या कर सकते हो, लगा सकते। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि ये बेस मैप के जैसे ये इन्होंने लगाया हुआ है, ये कैसे लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है, वो अब एक बार मैं आपको बता देता हूँ। बट मेरी ख्याल से ये हम रुक के कर सकते हैं, इसमें कोई उतना बड़ा बात नहीं है। मेन चीज है कि मैप लाना। ये अगर मैं आपसे बोलूँ कि वेब पेज में आई वॉन्ट टू ऐड दिस काइंड ऑफ बेस मैप, सो कैन वी ऐड, आर वी एबल टू ऐड और नॉट? कर सकते हैं ऐड। यस। यस। ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा काम है कि जो हमने जो है लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज किया था, लास्ट टाइम एक्सरसाइज करके हम यहाँ पे सर्च रिजल्ट वगैरह लेके आए थे। एंड यहाँ पे कहाँ गया हमारा वो सर्च पिन कोड? ये फंक्शन मैं जस्ट कॉपी कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा नया कुछ नहीं कर रहा हूँ। सो हमारा ये और हमने क्या किया था यहाँ पे, परफॉर्म सर्च।
ये हमने एक ऐड किया था कल। क्या था अपना? 482001। सही है। ओके, सो हम जहाँ कल थे वहां तक तो हम यहाँ पे हैं अभी। अब व्हाट इज द टास्क विच बेसिकली इन आवर लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस, कि जब मैं इसको कुछ भी सर्च करता हूँ तो आपको पता है कि हमको ये सब रिजल्ट मिलता है। और अगर हम लोग इसको जाके कंसोल में चेक करें, हमने प्रिंट विंट भी किया था, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमको वो रिजल्ट मिल जाता है। और अगर मैं इसको ये ऐसे दिखाऊं मैं आपको कि जो परफॉर्म सर्च, ये क्या है? सर्च वर्च किया हमने, क्लियर सर्च, सेट टाइम आउट, ये सब छोड़ दीजिए, ये आ गया, ये आ गया। एक्सियोस, ये है बराबर। तो ये जो है हमने यहाँ पे जीरो प्रिंट किया था, इसको मैं पूरा प्रिंट करता हूँ। अभी नाउ वी आर हियर एंड कोई भी आप बताइए कोई। ये क्या है? 413002 सर्च किया, कुछ रिजल्ट नहीं आया क्या? आया कुछ तो, ठीक है। अभी आप देखो वो इतना सारा हमको रिजल्ट मिला, एंड इन ईच एंड एवरी रिजल्ट वी आर गेटिंग व्हाट? वी आर गेटिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हम्म, ठीक है। हमारा एक टास्क है कि whenever whenever we will search any pin code, so definitely this pin code is connected to many areas. I want to show all these areas as a point on my map. ये सारे पॉइंट मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए, पहला चीज। सेकेंड टास्क इज व्हेन आई क्लिक ऑन दिस पॉइंट देन इस वाले पॉइंट पे जूम होना चाहिए। ये है हमारा जो टारगेट था। करेक्ट है, यही था ना अपना टारगेट? लास्ट टाइम अपन ने डिस्कस किया था, करेक्ट? तो इसको हम अपने एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करने से पहले मैं पहले आपको एक अलग से दिखाता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे थे हम, ये हमारा क्या था? एक मैप था। और इस मैप में हम देख रहे थे कि हमारे पास एक मैप का ये कुछ तो बाउंड्री है या मैप हमारे पास आ रहा है। नाउ द थिंग इज, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैं बता देता हूँ क्या? बटन इनपुट टाइप इज इक्वल टू व्हाट? टाइप इज इक्वल टू बटन ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में शो पॉइंट्स, कुछ तो ऐसा बना देते हैं। एंड इस पे एक क्या कर देते हैं इसको? वैल्यू इज इक्वल टू डिस्प्ले। तो ये हमारा कुछ तो इधर पे डिस्प्ले आएगा। अब ये फंक्शन मैं यूज कर बनाऊंगा। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू शो some data on the map, because there are many ways we have to show the data on the map.
So first I want to show you how to add GeoJSON in our map, because the reason is GeoJSON recently we already have explored, so we know how to add the how what is the GeoJSON. तो उसके लिए मैं आपको क्या करूँगा, पहले मैं बहुत सिंपल आपको एक GeoJSON वाला जो वेबसाइट मैंने बताया था, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। और यहाँ पे आके यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ कि कोई भी जगह पे जाएंगे हम, किसी भी जगह पे जाके हम यहाँ पे एक दो तीन पॉइंट बनाते हैं। ठीक है, कितने पॉइंट बना दिए अपन ने यहाँ पे? 3 पॉइंट बना दिए। ये जो 3 पॉइंट बनाए हैं इसका जियोजेसन ये है। इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग को पहले से पता है ये जियोजेसन के बारे में। ये क्लियर है ना? जियोजेसन यस। क्लियर, वेरी गुड। तो जियोजेसन में हम नहीं जाएंगे अंदर। अब मुझे क्या है कि मैं एक काम करता हूँ, चलते हैं जरा ये अपना जो चैट जीपीटी है ना, इस पे मैं लिखता हूँ आई वॉन्ट टू एड पॉइंट जियो जेसन ऑन लीफलेट मैप। सो इन बिटवीन जो हमने जियो जेसन बनाया था ना, वो जियो जेसन को हम कहीं तो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, एक वेरिएबल बना देते हैं। लेट जियो जेसन डेटा इज इक्वल टू, ये हमने कर दिया इसको। ये जियोजेसन मैंने जस्ट सिंपल कॉपी किया, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया। तो ये आपका जियोजेसन डेटा है यहाँ पे। जब तक देखें वहाँ पे कुछ आया क्या? ठीक है, यहाँ पे कुछ तो आया। ये जियोजेसन दिखा रहा है, हमें इसका ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिकॉज वी ऑलरेडी हैव द जियोजेसन। वी जस्ट नीड टू चेक कि कैसे दिखाना है। सो द बेसिक वे टू शो द जियोजेसन इज, पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा क्योंकि ये बिल्कुल इजी वो है। मैंने इसको ये लिख दिया एंड ये आपका जियोजेसन डेटा है। ये जियोजेसन डेटा को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अभी हम चलते हैं एप्लीकेशन पे। सॉरी, हमारा जो एप्लीकेशन था ये वाला, रिफ्रेश कीजिए एंड जस्ट मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। तो इधर पे देखा जाए पॉइंट कहीं आया है नहीं आया है। पॉइंट आ गया है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो आपने देखा कि अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास जियोजेसन है, अगर आपके पास जियोजेसन है, देन देन आपको एक लाइन का कोड है जो कि जियोजेसन को क्या कर देगा, मैप के ऊपर ऐड कर देगा। भाई ये जो है इतना कोड है जो जियोजेसन का लेयर बनाता है, और ये जो है वो किसके ऊपर ऐड कर देता है उसको, मैप के ऊपर मैं आपके। ऐड कर देता है। अब हमारे साथ क्वेश्चन ये है कि यार ये बनाना जरूरी है। ठीक है, अब देखो, ये आपको मैं द आई जस्ट वांट टू शो यू द पावर ऑफ एआई एंड हाउ इट इज सेविंग अवर टाइम। तो अभी यहाँ पे अगर आप जाओगे तो हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि मान लीजिए मैंने इसको सर्च किया, ये कुछ तो डेटा आया। मैं इधर पे जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं मालूम क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट लूंगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसा उठाता हूँ, कॉपी करूंगा एंड
चैट जीपीटी पे जाएंगे और उसको बोलेंगे यार हमको तुम जियो जेसन बना के दो। इसको क्या लिखेंगे कि आई हैव ऑब्जेक्ट एरे ऑफ दिस। मैंने उसको पेस्ट किया है और मैं उसको क्या कहना चाह रहा हूँ कि आई want to create GeoJSON using this। देखते हैं क्या बोलता है वो। ठीक है, मीनवाइल ये बना रहा है। हम यहाँ पे एक बार आ जाते हैं। ये एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे। सो इसको मैं वापस से रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। सोर्स पे जाइए, अपने कोड पे जाइए, एंड हियर वेयर इज आवर फंक्शन वाज दिस वन। एक लाइन का फंक्शन था। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मुझे ये जियोजेसन डेटा जो हमने कॉपी किया था, दिस वाज आवर जियोजेसन डेटा। एंड यू कैन सी जियोजेसन मींस जियोजेसन, there is one thing is type is equal to feature collection. Then we have the features. In this feature we have three features. One feature we have the geometry, we have properties, we have here geometry properties। ये बहुत सारा यहाँ पे चीजें रहती है ना। ज्योमेट्री है, प्रॉपर्टी सब में खाली है। ज्योमेट्री में सब में क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड दो कोऑर्डिनेट हैं उसका, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ये हमारा सिंपल जियोजेसन का फॉर्मेट है। इफ यू हैव दिस फॉर्मेट, सिंपली दिस सिंगल लाइन ऑफ कोड विल ऐड द जियोजेसन ऑन द मैप। तो हमारा इतना काम हो जाता है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई हमारे पास सबको ऑब्जेक्ट तो मिल रहा है, बट हाउ वी कैन क्रिएट द जियोजेसन। तो देखा जाए जरा ये क्या कहता है। ये भी सही जगह पे जा रहा है। इसने हमें बताया कि भाई हमारे पास डेटा कुछ इस तरीके से है, एंड कन्वर्ट टू जियोजेसन फीचर कलेक्शन। हमें फीचर कलेक्शन में कुछ तो कन्वर्ट करना है। एंड द द द द ठीक है, यहाँ पे क्या बोलता है ये कि डेटा एरे टू जियोजेसन फीचर कलेक्शन डी डॉट फिल्टर, कुछ तो कह रहा है ये। एनीवे इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और ये डेटा एरे को हम यहाँ पे पास करेंगे, एंड देन वी विल सी व्हाट इट विल गिव। इफ इट इज गिव प्रॉपर, then we will move forward, otherwise we will try to find some different approach। so for that हम अपने ये वाले कोड पे आते हैं। यहाँ पे हमको क्या मिलता है, डेटा मिल जाता है आपको। आपने यहाँ पे क्या किया, वो जो फंक्शन था वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा। कहाँ पे कॉल करूँगा, यहाँ पे जहाँ पे मुझे डेटा मिल रहा है। इसको टू जियोजेसन मैंने कॉल किया, एंड इसमें मैंने क्या पास कर दिया यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे पास कर दिया। एंड ये क्या है, कुछ रिटर्न करता है। ठीक है भाई, ये कुछ रिटर्न करता है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे मैं इसको एक ऐसा वेरिएबल टेस्ट करके डाल देता हूँ। और देन यहाँ पे हम लोग इसको कंसोल डॉट लॉग टेस्ट देखते हैं ये मिलता है या कुछ की नहीं। वापस आ जाते हैं अपने एप्लीकेशन पे। ये क्या बोल रहा है, ओके। तो फिर यहाँ पे हम यहाँ पे 482001 या फिर जो है 500007, एंड सोर्स पे जाते हैं। डीबग पॉइंट पे चेक करेंगे एक जगह, डीबग मार के कि जो है सब कुछ बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या है हमारा फंक्शन का नाम, परफॉर्म सर्च। परफॉर्म सर्च पे चलते हैं। ये है, कहाँ गया,
आपका फंक्शन 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 फंक्शन, ये ये है। ठीक है। देन यहाँ पे हमने इसको सर्च किया, 50007 सर्च किया। क्या आ गया, रिजल्ट आया क्या? रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद में नेक्स्ट स्टेप पे गया। इसने टेस्ट, वाओ, कुछ तो उसने बना दिया। हमको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। सारा ज्योमेट्री फॉर्मेट्री ये वो सब उसने बना के रेडी कर दिया। ठीक है, हम इसको कुछ नहीं करेंगे अभी। सो नाउ यू हैव सीन कि दिस फंक्शन, द जस्ट नाउ व्हाट वी रिसीव फ्रॉम chat gpt, this function has converted this array, what we have received, to the GeoJSON, and this GeoJSON we got, which we have printed. Now, if you have seen in this example, what this example was telling, if you have the GeoJSON data, then in using the single line, you can add this to the map. I am using the same thing, वही एक लाइन में यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। ये जो डेटा आपका आया है टेस्ट, इस टेस्ट डेटा को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, बस और कुछ भी नहीं करूँगा। अभी यहाँ पे हम देखते हैं रिजल्ट हमारा 5। क्या है, एक आपका किसी ने कल बताया था ना, कौन सा पिन कोड सर्च करने के लिए? कोई सा बताओ। 413 वाला। ये वाला 413 वाला, 413002 सर्च कीजिए। रिजल्ट आ गया। यहाँ पे कहीं पे आना चाहिए डेटा हमारा। ये देखिए, ये आपके सारे पॉइंट्स आ गए। जो जो पॉइंट्स उस जगह से, सोलापुर का है क्या ये? जी सर जी। हाँ, तो ये सोलापुर के लिए सारे के सारे पॉइंट आ गए। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये करनी है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं डालता हूँ 482001, दिस बिलोंग टू जबलपुर एरिया, सर्च करेंगे। देन ये रिजल्ट आ गया। एंड इवन आपका ये पॉइंट सारे अभी भी यहाँ पे हैं, और यहाँ के पॉइंट भी आ गए। ठीक है, ये यहाँ के पॉइंट भी, बस हमें क्या करना है अभी कि व्हेन new points we are adding, so we need to remove the previous one, correct? Don't require the previous one, first thing. Second thing is, whenever we are finding something, we are adding that data on the map, so we need to zoom to the particular layer, so that हमको आसान से पता चलेगा ना कि हाँ भाई हमारा पॉइंट कहाँ पे है। तो अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये हमारा जियो जेसन लेयर था, ये आपको पता है, आपने बनाया भी, और इसको हम क्या कर रहे हैं, मैप के ऊपर ऐड कर रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको इसको एक हम ग्लोबल वेरिएबल बना देते हैं, बाहर निकाल देते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू व्हाट, नल। सो व्हाट वी नीड टू डू हियर, इफ द कंडीशन इज व्हाट, इफ जियोजेसन लेयर, इफ जियोजेसन लेयर इज नॉट इक्वल टू नल। क्या है, जियोजेसन लेयर अगर क्या नहीं है, नल नहीं है। अगर जियोजेसन नल नहीं है, देन क्या कर दीजिए आप, मैप डॉट रिमूव लेयर। कौन सा लेयर, जियोजेसन लेयर। इसको आप क्या कर दीजिए, मैप से रिमूव कर दीजिए, पहला काम। एंड सेकंड काम क्या कर दीजिए आप, सेकंड काम क्या कर दीजिए आप, इसको मैप के ऊपर
इसको मैप के ऊपर क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए। और अगर अगर नल है, तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तब आप सिंपल क्या कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, इतना काम करिए। ये एक फर्स्ट थिंग हो गया। सेकंड थिंग क्या है कि हम ये चाहते हैं कि जब भी हम कोई भी नया लेयर ऐड करते हैं जियोजेसन का, तो मैप क्या हो जाना चाहिए, वहीं पे जूम हो जाना चाहिए। तो लीफलेट में आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे कि किसी भी मैप को जूम करने के लिए दो तीन जो है डिफरेंट ये है, मेथड है। मेथड मतलब बोले तो मैं आपको यहाँ पे अभी आइडिया आएगा, मैं कुछ बोल बताता हूँ। हाँ, यहाँ पे एक तो क्या है, मैप डॉट फिट बाउंड, मैप डॉट फिट बाउंड लेयर डॉट गेट बाउंड। तो ये क्या है, अगर मैं इसको यहाँ पे डालूंगा, जियो जेसन लेयर का बाउंड निकालिए और मैप के बाउंड को फिट कर दीजिए। जैसे कि हम लोग आर्क जीएस वगैरह में करते हैं ना, राइट क्लिक करके जूम टू लेयर करते हैं, तो वो एक्चुअली इंटरनली यही करता है। अब जो है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने एप्लीकेशन पे, एंड नाउ इफ आई ट्राई टू फाइंड हियर 413002, सर्च करूँगा, तो ये जो है रिजल्ट आने के बाद ये ऑटोमेटिकली उस जगह पे क्या होना चाहिए, इसको मूव होना चाहिए मैप को, जिस जगह का वो डेटा है। देखें कुछ एरर तो नहीं आ गया। नहीं, अभी तक तो एरर नहीं आया है कोई भी। एक बार डिबग करके चेक कर लीजिए। डिबग करना सबको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिबग ही हमारा एक हथियार है, जिससे कि हम पता लगाते हैं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। लेट सपोज अभी मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि कोई इशू तो नहीं है इसमें। सर्च किया, ये यहाँ तक सब सही था। टेस्ट में डेटा आ गया। जियो जेसन लेयर का वैल्यू क्या है यहाँ पे, जियो जेसन लेयर में कुछ तो यहाँ पे पड़ा हुआ है अभी। इसका मतलब है कि ये जो जियो जेसन लेयर है, ये कहीं तो जो है जियो जेसन लेयर का वैल्यू हमें देखना पड़ेगा, कुछ तो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। तो ये रहा हमारा जियो जेसन लेयर। जियो जेसन लेयर इज इक्वल टू, हमने क्या डाला हुआ है यहाँ पे, नल डाला हुआ है। एक बार चेक करते हैं। सर्च किया,
आ गया। ठीक है। अभी आप यहाँ पे कुछ और डालिए, जैसे कि लेट सपोज हमने यहाँ पे डाला 413002, सर्च कीजिए। ये आप देख रहे हो जो आपका डेटा था, और उसके हिसाब से क्या हो जा रहा है, ये जूम हो जा रहा है। अब हमारा नेक्स्ट एक टारगेट क्या था कि जब मैं इस पे क्लिक करूं तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जूम हो जाए, वो जब मैं इस पे क्लिक करूं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जूम हो जाए। लास्ट आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने यहाँ पे क्या निकाला हुआ था ऑलरेडी। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर दिया, हमने डाल दिया था। और एक्स वाई कोऑर्डिनेट इजीली वी आर एबल टू गेट ऑल्सो। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाउ वी कैन सेट द बाउंड ऑफ द मैप इट द सेम वे, in the same way, if we want to go to the particular point, so that also easily we can go with the help of map.pen2। यहाँ पे एक और बहुत अच्छा फीचर होता है इसमें, map.fly2। वो भी मैं कई बार यूज़ करता हूँ, तो उसमें जो है ऐसा फ्लाई होते हुए जाता हुआ दिखता है वो। ठीक है, यहाँ पे map.fly2। सो how basically this map.fly2 will work, ये एक और मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि मीनवाइल एनीवेज मीनवाइल ये जब तक आ रहा है तब तक हम यहाँ पे जो हमने कल ये लिखा था कोड, कौन सा वाला, गेट एट्रीब्यूट, ये हमने कल एक फंक्शन था ना गो टू मैप। एक काम करता हूँ, मैं इसी फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि बिकॉज अल्टीमेटली वो फंक्शन ऑलरेडी वहाँ पे हमने डाला हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, बट दिस वी नो नीड टू डू टुडे बिकॉज वी डोंट वांट टू गो टू द गूगल मैप, वी वांट टू show the things in our map only, so we using this we got the latitude and longitude। now we need to fly to, so ये देखिए जरा यहाँ पे कुछ आया है क्या, नहीं आ रहा है, इधर पे भी नहीं आ रहा है। हम्म ये आ गया हमारे पास फंक्शन। फंक्शन क्या है हमारा, map.fly2। ये एक बहुत मज़ेदार ये है। ये क्या है कि थोड़ा तो यूज़र को देखने में अच्छा लगता है। map.fly2, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका लैटिट्यूड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूड, और ये आपका जूम लेवल। तो जूम लेवल आपको जो भी रखना है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रख सकते हो। देखते हैं, चलो देखा जाए एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे हमने डाला 500007, सर्च किया, हमारे पास ये आ गया कि भाई ये पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, कई पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो जब ये आप इस पे क्लिक करो गो टू मैप, देन ये क्या करेगा, ऐसे ही लेट सपोज यू वांट टू गो टू दिस पॉइंट, दिस इज बेसिकली आई थिंक सेम पॉइंट, NGRI तारनाका। कोई दूसरा एरिया देख सकते हैं जो कि और भी जिसमें पॉइंट्स बहुत सारे हैं, 413002 सर्च कीजिए। You got all the points. Now let's suppose you want to see where is this Arali area. Just click on this go to map. Then it will show you where is this Arali area. Belati, this is different area. Dagaon, ये अलग एरिया नहीं है। Haglur is the different area. So the thing is here you can see how quickly how quickly we are able to create a map, and
मतलब ये जो है आप देख रहे होगे कि अपन कितना फटाक से हमने क्या कर लिया इसको, एक छोटा सा एक एप्लीकेशन बना लिया, जिसमें कि सर्च रिजल्ट भी हम दिखा रहे हैं, जिसमें हम मैप भी दिखा रहे हैं, जिसमें हम सर्च एंड मैप का इंटरेक्शन भी दिखा रहे हैं, और गो टू मैप करना है आपको। अभी क्या है, इसमें एक फीचर और था जो कि मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि when we have added, actually first of all, we if we want we can change this symbol of the marker. This is the default marker of the leaflet, but if we want to change the marker, then we can change the marker, that we will see in the next session. Second thing is, if I click on this marker, then I want to see the information info window. So when I click on this, I want to show the info pop up. So that also I will show you in the next session. And third important thing what we need to discuss, this is the map, base map. How we can change the base map, how we want, जैसे कि अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो एक एप्लीकेशन है. So if you see in this application, so here if how basically we can, so if you see in this application, so here we are showing the vehicle points. So whatever the vehicles have run today, that vehicles we are showing in green color, and the vehicles which are not run today, we are showing in the black color. Second thing is, if you click on any vehicle, then it will show you all the information of the particular vehicle, what is the vehicle ID, user ID, device ID, and all. Then, if you want to change the base map, so here I have given three base map. One is the Google Street, other one is the Google Satellite. So you can basically go and check the Google Satellite also. And third one is the OSM map. So you can see the result, or so you can change the base map as a OSM map as well. And actually, the feature what I shown you, these are the features which basically we are using in all the map application. जैसे कि अभी आप देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ फीचर्स दिए थे कि दिस इज फॉर द न्यू पेज, एंड ये क्या है आपका, लोकेट ऑन द मैप. So this is the same feature what I shown you, I have implemented here. कि how we can show the vehicle or show the map marker using the map dot fly to. This option I like because ये क्या करता है, फ्लाई करके आपको ऐसा दिखाता है. नेक्स्ट क्या है कि जैसे इसके अलावा बहुत सारा चीजें हैं जो एप्लीकेशन में डालते हैं. जैसे हमने यहाँ पे कैमरा वगैरह लगाया हुआ है, तो ये फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, ये सब भी आपको दिख सकता है. So the thing is like how basically we are developing the map application, that is totally depends upon the requirement. अभी देखो हम लोग ने जैसी बात करते करते एक आइडिया आया, और उस आइडिया से हमने क्या बना दिया, एक एप्लीकेशन बना दिया कि अभी हमको पिन कोड चाहिए, चाहिए वो चाहिए सारा चीजें. नेक्स्ट जो है, कभी कभी क्या होता है कि इसमें ही आपको ये आ जाता है कि मुझे इसका, जैसे जो सर्च रिजल्ट आया, कोई भी सर्च रिजल्ट आया, आई वॉन्ट टू गेट दिस रिजल्ट इन पीडीएफ. तो हम पीडीएफ में उसका रिपोर्ट कैसे बनाएंगे वेब पेज में. These all things slowly we will discuss and we will do in the live session only. तो इसको बताइए, किसी को कुछ प्रॉब्लम है अभी यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है? यस यस सर। ठीक है. तो इसको जो है थोड़ा सा
करने की कोशिश करिए। मैं आपको ये दोनों ही पेज दे देता हूँ, ये भी दे देता हूँ और ये वाला भी दे देता हूँ, ठीक है। तो इसमें ये आपके जस्ट ऐसे ही समझने के लिए। और ये जो है इसमें थोड़ा सा आप प्ले कर सकते हो, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या किया है कि बेस्ड ऑन द सर्च वी आर शोइंग द रिजल्ट हियर। और इसको ही देखो, जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है ना, इसको ही समझने का कोशिश करिए। वैसे सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, और अपन लोग वैसे ही इतना इजी वे में करते हैं कि लगता है कि सब कुछ बहुत इजी है। अभी जैसे यहाँ पे क्या था, ये जूम इन है, जूम आउट है, ये क्या रीसेट व्यू है, सैटेलाइट व्यू है, ये सब भी हमको देखना है। अभी नेक्स्ट सेशन में ना ये सब भी अपन चेक करते हैं कि ये सब अपन कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये अच्छा है, सैटेलाइट व्यू एंड दिस वन, ओपन स्ट्रीट। इसमें एक वो भी होता है कि अभी मान लो कि आपने किसी एक पर्टिकुलर मार्कर को सर्च कर रहे हो, आप लेट्स सपोज आप इसको सर्च कर रहे हो, तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक जंपिंग मार्कर दिखाओ, जस्ट फॉर 5 सेकेंड और जस्ट फॉर 3-4 सेकेंड। जैसे ही मैंने यहाँ पे कोई सर्च किया, जैसे ही मैं सर्च करूँगा, तो यहाँ पे वो गया, और यहाँ पे क्या करेगा, वो मार्कर ऐसे 3-4 बार जंप करेगा और ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। मतलब ये दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर दोज कंडीशन वेयर मल्टीपल मार्कर्स आर हियर। अभी ये एक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी नियर बाय में 3-4 मार्कर रहेंगे, तो फिर क्या होगा कि जब वो मार्कर जंप करेगा ना, देन यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज कि अच्छा ये वाला मार्कर हम सर्च कर रहे हैं। अभी ये इन बिफोर ना 2-3 सेशन वी गॉट दिस वन यूआरएल, वो अपना जो है दिया था ना किसी फ्रेंड ने अपने, डिजास्टर का, किसका डिजास्टर का, अर्थक्वेक का, किसका था वो, किस चीज का था वो। आर्ट क्लिक कर। अर्थक्वेक का। हाँ, अर्थक्वेक का, तो उसको क्या है, अभी हमको चाहिए, तो हमको हमने जो सिमिलर टाइप का जो एप्लीकेशन है, सिमिलर टाइप का एप्लीकेशन जो है वो हम किस में बना सकते हैं, वो अर्थक्वेक में भी, अर्थक्वेक का भी जो है सिमिलर टाइप का एप्लीकेशन बना सकते हैं। उसमें क्या होगा कि अर्थक्वेक का रिजल्ट आपको मिलता है, एंड दैट दैट रिजल्ट वी नीड टू शो ऑन द मैप। वो जियोजेसन डेटा है, और उस डेटा को आपको यहाँ पे दिखाना है। सिंपल, आप दिखा सकते हो उसको। ठीक है, अंडरस्टूड।